all of you are welcome in this panel discussion today, in which we will be discussing about present scenario of PGME in India. In the past year, a lot has happened in the arena of postgraduate medical entrance exam in India. There was NEET introduced in the last year, then it was abolished in this year. So a lot of pattern has changed in the PGME. There's a state of confusion and dilemma in the minds of many doctors who are aspiring for the PG in the coming years. So we took this opportunity to discuss this important topic, this important point with the medicos who would be preparing and appearing in the coming PGME exams. We have this panel discussion. Let me tell you, this is an open platform. You can put your questions to the panel of experts here, and a panel of experts comprised of all the people who are competent enough to give you reasonable and relevant advice on all the inputs, on all the queries you have. The panel of experts is headed by Dr. Sumed. I would like to call upon Dr. Sumed to the dais. Please put your hands together for the panel here today. Dr. Sumed is a name known to every one of you, a face which is very active and very much available on Facebook, and I would say that on any standards you could say that he's a celebrity on Facebook, and even on Facebook standards he's a celebrity. He's got a fan following of say more than 50,000, sir. So he's a man of very few words on these things. A very knowledgeable man, a versatile genius, who has got a dynamic personality and great message for all students who want to rise in life. Our panel comprises of another very popular name, Dr. Nitin Gupta. He is our AIMS author. He has authored so many books to dance. AIMS Buster is very popular among students. Sir, we welcome you formally in this panel discussion, and definitely students would be benefited by your inputs today. As we have mentioned here, meet the toppers. I have with me a topper from AIMS Postgraduate Medical Entrance Exam, Nikhil Makhija, a classroom student of dance, a very hard-working boy, and a very intelligent professional. Welcome, Nikhil, in this panel discussion. I would now like to invite Dr. Sumed and hand over all the proceedings to him to carry you people forward with this panel discussion. Dr. Sumed, all yours. Thank you very much. Good afternoon, good evening everybody, good evening. It is, I'm sure for आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अभी गुड मॉर्निंग होगी, गुड मॉर्निंग, क्योंकि रात को लेट सोए होंगे तो मतलब मॉर्निंग टाइप से लग रहा है अभी फीलिंग में आ रहा है। एंड मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग क्या सोच के आप आज के इवेंट में आना चाहते हैं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ तो आपको क्या लगता है कि हम क्या बात करें? What do you think? क्या हम फेस्टिवल अटेंड करने आए थे, हम क्यों बात करें एग्जाम के बारे में? अभी तो एग्जाम से दूर है, इसीलिए तो यहाँ आए थे। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप? अभी तो एग्जाम से दूर है, तभी तो पल्स में आए थे। क्या बात कर रहे हैं लोग, एग्जाम की बात करना चाहते हैं, क्या पागल है? क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूँ समझ सके हम यहाँ आज क्यों बात कर रहे हैं। हम लोग आप ही की तरह हैं, हम लोगों को बस थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई है, समय बीत गया है आपके विषय। नहीं तो हमने अपने समय पे हम लोग हर साल पल्स में आते थे, फर्स्ट ईयर में MBBS में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में पल्स में हम आए थे, इंडक्शन में भी, फर्स्ट ईयर PG में भी। एंड टुडे व्हेन वी कम बैक एज द चीफ स्पॉन्सर, अलग ही मज़ा है उस चीज़ के अंदर, क्योंकि दिस इज़ द कंप्लीट सर्कल ऑफ लाइफ फॉर मी। तो हम लोग कैसे, मैं चाहता हूँ आप समझ सको हमने क्या किया और हम क्यों ये बात करना चाहते हैं आपसे। हम लोग अपने समय पे, जब मैंने मेरा PMT का एग्ज़ाम लिखा था, जब मैं स्कूल के बाद मैंने PMT का एग्ज़ाम लिखा था, मेरे समय पे कोई भी मेरे स्कूल से PMT को नहीं क्रैक करता था। और मेरे समय पे मैं जानता था कि कोई भी, मतलब मेरे स्कूल में कहते थे कौन
PMD कैसे होता है किसी को पता ही नहीं था, और मुझे खुद भी कुछ ओरिएंटेशन भी नहीं थी कि PMD के लिए कैसे पढ़ना है, मैं पढ़ता ही नहीं था उसमें, मुझे पढ़ता मुझे पता भी नहीं था क्या करना है। जब मैं क्लास 12 में आया तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो तो पता नहीं 8th क्लास से अलग अलग तरह की क्लासेस में जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसमें। एंड आई एम श्योर आप सब भी उस स्टेज से गुजरे हैं स्कूल के समय के, आपने ज़रूर देखा होगा कि पता ही नहीं चलता कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग बताते ही नहीं। तो मुझे अचानक से क्लास 12 में पता चला कि नहीं यार, लोग तो पहले से ही पढ़ रहे हैं, मेरा तो कोई चांस ही नहीं, मैं तो अभी तक नॉन सीरियस पढ़ रहा हूँ। मेरे समय पे क्लास 12 के अंदर जो मैं मिड 12th क्लास के बैच के अंदर मैं पहुंचा, मिड बैच के अंदर, उस समय पे अचानक से एक नोटिफिकेशन आया अखबार के अंदर कि CBSE PMD का सिलेबस चेंज हो गया। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज्ड कि CBSE PMD का सिलेबस जो था वो पूरा जितना पहले होता था उन्होंने सब नया सिलेबस लेके आ गए। उन्होंने ज़ूलॉजी का सारा गेम चेंज कर दिया, बॉटनी में भी चेंज कर दिया, सब कुछ नया लेके आ गया, ठीक है। और अचानक से मेरे जैसे लोगों के लिए वो जिंदगी का एक नया ही एक डायरेक्शन बन गया, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड बन गया। लेवल प्लेइंग ग्राउंड मतलब जो लोग 8th से पढ़ रहे थे उनके लिए भी नया था, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मेरे लिए भी नया था। सो व्हाट आई रियलाइज्ड सडनली वाज कि अभी मेरा मौका है, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं तो मैंने सोचा था छोड़ ही देते, क्या फायदा डॉक्टर बनने का, ये तो अपने बस का काम भी नहीं लग रहा, 4 साल क्या करूँगा। सो मैंने पढ़ना शुरू किया एंड हैड 6 months। और मजे की बात ये थी कि सबके पास 6 महीने थे, किसी के पास 4 साल 5 साल नहीं थे, कोई 6th क्लास से नहीं पढ़ रहा था, कोई 1st क्लास से नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि सिलेबस ही नया था, सबके लिए 6 महीने थे। अब जब ये 6 महीने के लिए पढ़ना शुरू किया मैंने, तो अब मैंने देखा कि अचानक से एक नया डायमेंशन आ गया इसके अंदर कि जिसको स्मार्टली पढ़ेगा वही जीतेगा। अब हुआ क्या, जो लोग पहले से ही 8th क्लास से पढ़ रहे थे, अब वो जो पहले इतने सालों से पढ़ रहे थे वो वाली ज़ूलॉजी को छोड़ नहीं पा रहे थे, उन्हें लग रहा था नहीं वही पूछेंगे, जबकि सिलेबस चेंज हो गया था। अब जब मैंने मेरा CBSE PMD का एग्जाम दिया तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 4 आया इसके अंदर। मैं ऊपर गया, मैंने रैंक देखा, CBSE PMD की बात है, मैं ऊपर गया, मैंने अपना रैंक देखा, मैं वापस आया, मैंने पापा को बताया मेरा रैंक 4। पापा कहते क्या बात कर रहा है, तो बैठ में देख के आता हूँ, गलत तो नहीं देख के आके किसी और का देख के आके लगता है कैसे, तो सोचता हूँ। और तब मुझे सडनली जिंदगी में पहली बार रियलाइज हुआ कि कुछ MCQ के बारे में बात है जो मुझे पता है, जो प्रोबेबली लोगों को नहीं पता। पहले मैं सोचता था कि मेरे को मतलब इट इज ऑल यूनिक आइडिया, और मुझे लगता था सबको ही पता होगा ये बात, जबकि देन आई रियलाइज आई नो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट MCQ। मैंने मेरा MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से किया। मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं एम्स के अंदर मेरा UG में नहीं एडमिशन हुआ था उस समय पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हो भी सकता है, आप समझ पा रहे हैं। तो मैंने कभी एम्स का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता था उसको देखता ही नहीं था, मेरी क्या औकात, एडमिशन भी नहीं हो सकता तो मैं क्यों देखूँ, मैं देखा ही नहीं था कभी। तो मुझे मौलाना आज़ाद में मेरे बैच के सारे लोग जानते होते थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो होता था, आपको इस तरह कहते थे CBSE के अंदर ना, ये टॉप मोस्ट CBSE रैंकर है जो मौलाना आज़ाद में है, उससे पहले वाले सब एम्स में ऐसा था ना, 4th मतलब 1 2 3 एम्स, 4th वाला मौलाना आज़ाद है, तो सब जानते होते थे। लेकिन थोड़े दिन तक जानते थे, बाद में वो भूल गए, क्योंकि प्रॉफ के अंदर मेरा कोई डिस्टिंक्शन नहीं आया, कोई मेरा प्रॉफ में गोल्ड मेडल नहीं आया फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, आप तो जानते ही। और मेरे कॉलेज के अंदर ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोग मौलाना आज़ाद या दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कैसा था कि ना फर्स्ट 10 या 20 ना कभी भी कोई लड़का आता नहीं था। मैंने कभी पता नहीं क्या कारण था, लड़कों की रैंक आने वाली थी। और इसमें ना क्यों, मेरा फिजियोलॉजी का एक वाइवा हो रहा था, फिजियोलॉजी के वाइवा के अंदर मैं गया, मेरे से पहले एक लड़की गई अंदर, और मैं बाहर वाइवा सुन रहा था, मैं जैसे कि अच्छे बच्चे सुनते हैं ना कि क्या अंदर पूछ रहे हैं, मैं सुन रहा था। उससे पूछा कि पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा होने से क्या होगा, वो कहती कैल्शियम कम हो जाएगा। मैंने क्या बात कर रही है लड़की यार, क्या बोल रही है, सब उल्टा पुल्टा बोले जा रही थी वो लड़की। और एग्जामिनर से बोला था बेटा बताओ, बेटा और बताओ, बेटा और बताओ। तो आई वाज लाइक कि बड़ा अच्छा आदमी है, तो इतने अच्छा एग्जाम से ले रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इससे। मैं फिर जब मैं अंदर जा रहा था एक अच्छे बच्चे की तरह, मैंने नंबर भी देखे, उसने 10 में से 7 नंबर डाले, उसके 10 में से 7 नंबर थे लड़की के। मैंने सोचा इसको, जिसको पैराट हार्मोन नहीं पता कि क्या करता है, इसके 10 में से 7 है, मैं CBSE का टॉपर है यार, मैं अब कैल्शियम के बारे में ऐसा पढ़ूंगा देखना। अब मैं इससे पहले कुछ बोलता, वो बोलता तुम कुछ पढ़ के आते नहीं हो तुम लोग। सच्चाई है MBBS की। There is a rule. When you are in final MBBS ना, सबसे ज्यादा प्रेशर तभी होता है कि फाइनल ईयर पास करना है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों चले जाते हैं, फाइनल ईयर पे डर लगता है कि यार कैसे पास करेंगे, क्या होगा। तो हम लोग भी बहुत टेंशन रहते थे, हमारे सीनियर्स हमें बोलते थे कि बेटा देखो सिल्क रूल चलता है MBBS पास करने में। वैसे सिल्क है क्या, ये सिल्क हमको समझ नहीं आ रहा था। अब तो उसके बाद तो दूसरी सिल्क एक और आ गई, वो सिल्क मतलब
तो सिल्क बोले कि मैं सर है क्या सिल्क ये? बोले कि देखो मैं तुम्हें ऐस बाद में बताऊंगा। आई इज फॉर इन्फ्लुएंस। अगर तुम कितना इन्फ्लुएंशियल हो, हाउ मच इन्फ्लुएंस डू यू हैव ऑन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और द यूनिट हेड और डीन और व्हाटएवर। एल इज लक, के इज नॉलेज, वो तुम्हारे पास है नहीं। एस बचा सेक्स, वैसे तो मेल और फीमेल। जैसे कि अच्छे स्टूडेंट अपने नंबर देखते हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा, उस समय 10 में से 5 थी। सडनली कि अभी डिस्टिंक्शन आना तो दूर की बात है, यहाँ पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम का डिस्टिंक्शन नहीं आया, फिर कोई सेकंड प्रॉब्लम मेरा कोई डिस्टिंक्शन नहीं आया, मैं पास होता रहा, कभी डिस्टिंक्शन नहीं आया, कभी गोल्ड मेडल नहीं आया। किसी प्रोफेसर ने मुझे बुला के नहीं बोला ये लड़का होशियार है, किसी से बात नहीं हुई, किसी से बात नहीं, किसी ने पहचाना नहीं। अगर मैं सही वर्ड इस्तेमाल करूँ तो प्रोबेबली मौलाना आजाद की सारी फैकल्टी के लिए मैं ट्रांसपेरेंट था, कोई मुझे देख नहीं पाता था, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि हम भीड़ में ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट लोग सौ नहीं, मतलब किसी ने बोला नहीं कि होशियार लड़का है। इंटर्नशिप में जब हम आए, इंटर्नशिप में अब तक लोगों की बेड्स अलग जगह लग चुकी थी, अलग तरह लग नहीं माने कि कोई प्रॉफ में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई लड़की यूनिवर्सिटी टॉपर है, ऐसे लोगों पर बेड लग चुकी थी, ये लोग रैंक आएंगे। अब जब मैंने अपना ऑल इंडिया पीजी का एग्जाम दिया, मेरा फिर से रैंक 4 है ऑल इंडिया पीजी के अंदर, और अब क्या मेरा एंड देन सडनली आई रियलाइज कि यार मुझे कुछ पता है, मैं यू नो रीइंफोर्स्ड मी कि मुझे लगता है कुछ पता है, सब मुझे लगा कि किसी को पता ही नहीं है बात, यू नो कैन यू अंडरस्टैंड, बट मेरे लिए जो बात कॉमन सेंस थी किसी को पता ही नहीं थी। एंड देन आई रियलाइज कि यार ये बार-बार मैं सिंगल डिजिट रैंक लाता जा रहा हूं ऑल इंडिया एग्जाम्स के अंदर, मे बी आई नो समथिंग व्हिच अदर पीपल डोंट नो। So that was the beginning of our institute called as DAMS, and we started telling other people. I did my MD radiology from Delhi, and we started discussing, we started forming small batches in Delhi. Today, those small batches in Delhi today have grown to, we're running 30 centers across India. This year we have started satellite-based classrooms in 20 more centers already, and we are aiming to go to 80 centers. We are opening a classroom in Dehradun next. We are and we are opening a satellite-based center in Kota, Bikaner. We've already opened. We've reached cities which nobody else has ever done. So, you know, with all humbleness, I would want to bring forward today my team who is going to discuss and answer your queries for PG Entrance exam. To my left is Nitin. You know, a lot of people, you know, Ayush is already introduced, but I, you know, want to do it my own way. Nitin is one of the guys who is mentoring many students today. And almost free, you know, he's not asking for any money, he's free of cost. You tag him on Facebook and ask anything, he will answer. You know, he is like this only. And today he is the author of a very famous book for AIMS Personal. It is a solution for all recent AIMS exams. So he is again a radiologist. He's done his radiology from Kolkata. Nikhil is our student last year. He is All India 7th rank and he is very humble boy. Extremely, you know, intelligent, and he is very practical. He will, you know, give you good practical advice. He's been kind enough to join us. There are more people who are scheduled to join us, so in between they'll keep joining us. We don't want to waste your time. That is why we thought we'll start. Other panelists will keep joining us. We can go either ways. जैसा आप चाहते हैं वैसे जा सकते हैं. आप पूछेंगे उसके ऊपर बता सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम अपने आप से बताते चलें, आप बीच में आप पूछते हैं. दोनों तरह से करेंगे, क्योंकि हम लोग कई साल से ये करते आ रहे हैं, तो हमें रूटीन क्वेश्चन पता भी रहते हैं आपके. लेकिन फिर भी आप पूछना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. मैं इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ 2 मिनट, मैं चाहता हूँ कि हम निखिल का 2 मिनट का समय मैं पहले लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसी बार का रैंकर है. मैं चाहता हूँ उसका क्या एक्सपीरियंस है उसको हम पहले लें, फिर हम बात करते चलें. We'll have Nikhil Makhija, you know, a single-digit ranker in the SAIMS, doing MD radiology from AIMS, first year right now. He's been so kind to join us today. I think he deserves a big hand. रैंक लाने के बाद लोगों से मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है. रैंक से पहले आसान है, so he's such a, you know, sweet fellow. He'll help you out. Okay? Let's listen from him first. I would like to, 1 साल पहले मैं भी बिल्कुल उस कोने में बैठा हुआ था और मेरे सामने भी एम्स में टॉपर आए थे डांस की. एंड लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, सब पूछ रहे थे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है. मेरे दिमाग में तो एक ही क्वेश्चन आ रहा था, एम्स क्या खा के दिया था यार तुमने सुबह, जो तुम्हारा रैंक इतना अच्छा आ गया. बिकॉज पढ़ाई का हम सबको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, ठीक है कैसे पढ़ना, और मुझे लग रहा था मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, बट ऐसा होता नहीं है. हमेशा में छोटी मोटी कन्फ्यूजन हमेशा लाइफ में रहती है. और उस समय मेरे दिमाग में था अभी एम्स तो यार दे आर बॉर्न जीनियस, जो एम्स में जाते हैं जीनियस होता है. फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑल इंडिया दिया, मेरी रैंक थी 4000 समथिंग,
ऑल इंडिया में कुछ नहीं है ना, नो क्लिनिकल सीट, एंड दिल्ली के थ्रू मुझे लास्ट क्लिनिकल सीट मिल रही थी, लेडी हार्ट की है। सो आई वाज लाइक ठीक है अगले साल जो मिलेगा आई टेक इट। एम्स तो बहुत दूर की बात है, एम्स का कुछ सोचा नहीं, बट ठीक है डैम्स में ज्वाइन किया मैंने उस टाइम पे। 1 साल प्रॉपर ट्रेनिंग की फैकल्टी सर तो हमेशा रहते हैं फेसबुक पे, जो डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व ना हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड ठीक है ये तो पढ़ाई का तो डैम्स की नोट्स एंड रिपीट्स ऑल ईयर्स, ठीक है ना, 10 ईयर रिपीट्स, इसके बाद तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जो हमें हमेशा हॉन्ट करते रहते हैं, ठीक है किसी ने ये आंसर बताया, किसी ने वो आंसर बताया, बट ठीक है इन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस तो हमेशा रहेंगी, हमेशा 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में डाउट रहेगा ही। तो ओनली सॉल्यूशन इज कोई बुक सही आंसर नहीं देती, रेफरेंसेस में भी कई बुक्स में अलग अलग लिखा है, ठीक है। सो ओनली आंसर इज द डैम फैकल्टी। फैकल्टी विल विद एक्सप्लेनेशन तुम्हें आंसर बताएगी, यू लाइक दैट एक्सप्लेनेशन एंड गो विद इट विदाउट एनी डाउट। लेकिन आई लाइक इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट अभी ना सेकंड ईयर वाले भी होंगे, ऐसे कि थर्ड ईयर भी होंगे, क्योंकि ना अभी पल्स में ना जब फाइनल ईयर वाले तो आने पाते बेचारा की जिंदगी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आई एम श्योर सेकंड ईयर एमबीबीएस, रेज योर हैंड, सेकंड ईयर एमबीबीएस। सो इनकी क्वेरी हम वहाँ से चलते हैं कि आप ना सेकंड प्रॉफ में खुद कैसे पढ़ते हो, यू आर एम्स रैंकर, मैं नहीं सोचता कि वो पहले जो पढ़ा होगा वो वैल्यूबल हो। तो सेकंड प्रॉफ में कौन सी किताब पैथोलॉजी के लिए पढ़ी, कैसे पैथोलॉजी पढ़ी, क्या टॉपिक्स पढ़े? ठीक है उस समय जो सब्जेक्ट्स हैं, He is very down to earth because I'm again adding, मतलब एम्स में सिंगल डिजिट रैंक आसानी से नहीं आता, लेकिन वो ना अंडर प्ले करता है अपने आप को, मैंने हर बार देखा अंडर प्ले करता है कि ऐसा ही है कुछ नहीं, बट ही इज वन वेरी जीनियस काइंड ऑफ पर्सन। तो ही टेल अस पैथोलॉजी, फार्मा, फोरेंसिक, माइक्रो कैसे पढ़ना है, और फर्स्ट प्रॉफ इन लोग को कैसे पढ़ना चाहिए था, और व्हाट डू यू थिंक नाउ आफ्टर गेटिंग अ रैंक? एक्चुअली सेकंड ईयर तो इट्स द टाइम फॉर बेस, ठीक है ना, पैथ, फार्मा, माइक्रो बहुत एक्सटेंसिव डीप सब्जेक्ट्स हैं, एंड इतनी जल्दी हम एमसीक्यूज के ऊपर नहीं देंगे, ठीक है ना, वी हैव टू नो द बेसिक्स। हम जब बेस नहीं आएगा तो ऊपर काम कर नहीं सकते, तो ठीक है सेकंड ईयर इज ओनली फॉर बेसिक्स, ठीक है। और हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंस टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई डिराइव्ड ऑथर की नहीं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स इज द बेस्ट। रॉबिन्स मैथ में रॉबिन्स, ठीक है ना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई डाउट नहीं। फार्मा की गुडमैन की बहुत पढ़ी है, तो आई रेड गोविंद राय धर्मों की। कैसे में आपने वो पढ़ी थी क्या? तो केटीटी इज गुड, केटीटी इज गुड फॉर बेस, ठीक है, बट एमसीक्यूज के लिए गोविंद राय, बट पहले केटीटी इज अ मस्ट, ठीक है ना, केटीटी पे केटीटी आ जाए। What I've seen over the years is that if you are preparing for AIMS, you know, look for a book called as Catson. अगर आप सेकंड प्रॉफ में होते हैं और आप अच्छा बेस बनाना चाहते हैं, अगर मैंने जो इतने साल में देखा है, जो लोग सेकंड प्रॉफ में कैटसन को ज़्यादा पढ़ते हैं उनका रैंक ज़्यादा बेटर आता है बाद में, लेकिन वो बात बाद में हो नहीं पाती, क्योंकि जो चीज़ समय के साथ हो पाएगी वही हो पाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इंटर्नशिप के अंदर समय कम होता है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सो कैटसन इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू आर एमिंग टू कम टू एम्स एट अ लेटर टाइम। अभी पल्स में, बाद में यहाँ पे पढ़ने के लिए सोच पा रहे हैं आप, फर्क है कुछ? अभी पल्स में थोड़े दिन के लिए और बाद में हमेशा के लिए 3 साल के लिए पूरा यहाँ पे आने के लिए, तो फिर कैटसन इज द करेक्ट बुक टू लुक एट। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो के लिए ठीक है, वो तो इंडियन ऑथर का ही पढ़ना है, आनंद आनंद पालेकर। उसके लिए फोरेंसिक तो आपको हमेशा इंडियन ऑथर का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फोरेंसिक हमें इंडिया का लॉ ही जानना है। तो रेडी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रेडी से आंसर डायरेक्टली सारे जो ट्रॉमास ये वो एवरीथिंग इज देयर। फोरेंसिक तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, मतलब कंपैरेटिव टू अदर बहुत छोटा है, और अगर उसको तुमने थर्डली पढ़ लिया तो उसके 7-8 क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं, जो वैसे गलत लेंगे नहीं पढ़ा हुआ, अगर तुमने पढ़ा हुआ तो बिल्कुल सही होंगे। One good thing with first year and second year subjects and with PSM, you can score maximum. Like if you know the thing, you know it. आपकी चांसेस ज़्यादा है करेक्ट करने की, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और PSM इन कंपैरिजन टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। क्लिनिकल सब्जेक्ट में समटाइम यू नो सिनेरियो डिफर्स, और कई बार कोई जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसका माइंडसेट आप नहीं जान पाते हो। एक जैसे कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेगा कि ऑलमोस्ट यू आर रीचिंग टू ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोथ ऑफ देम सीम्स करेक्ट टू यू, बट व्हिच वन टू मार्क? ठीक है, हम कोई भी एक ओपिनियन हम देंगे कि दिस शुड बी द आंसर, बट द वन हु इज फ्रेमिंग द क्वेश्चन वी डोंट नो। क्लिनिशियन भी कई बार डिफर करते हैं ना कि नहीं यार ये तो मैं ऐसे ट्रीट करना चाहता हूँ, दूसरा बोलेगा कि मैं ऐसे ट्रीट करना चाहता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन करेक्ट इज वेरी वेरी हाई इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सब्जेक्ट्स विद PSM, क्योंकि वहाँ एक डेफिनेट आंसर है, जो है वही है। मतलब
फार्मेक में कोई ड्रग है तो वही है, मतलब वो मेंशन है कि ड्रग ऑफ चॉइस ये होना है तो यही रहेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि पीजी एंट्रेंस में सब्जेक्ट कितने हैं? मुझे ये पहले आप बताओ, कितने टोटल सब्जेक्ट कितने आएंगे आपको इंटर्नशिप? 19 सब्जेक्ट्स हैं। वेरी गुड, 19 सब्जेक्ट्स। अच्छा, इसमें से अगर मैं बोलूँ कि 5 जीरो डाउन करो जो पीजी एंट्रेंस का एग्जाम बनाएंगे, तो आप क्या सोचते हो? 5 ऐसे जो आपके एग्जाम को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। कौन से? मेडिसिन, सर्जरी, पैथो, फार्मा, पीएसएम। इसमें से कौन से 2 सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हैं? पैथो और फार्मा। अच्छा बताओ, यहाँ आने से पहले कितने लोगों ने हर्षमोहन नाम की गलती की? हर्षमोहन नाम की गलती कोई ऐसा नहीं? वेरी गुड। कोई मतलब किए तो हाथ नहीं करते। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें ये समझना है कि वंस वी पिक अप मे बी नॉन वेस्टर्न बुक फॉर दीज सब्जेक्ट्स जो मैंने 5 बताए, मेडिसिन, सर्जरी, पैथ, फार्मा, पीएसएम, अगर इन 5 को हम नहीं अच्छे से किताब से पकड़ते तो पीजी में रैंक आना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द टाइम। इस समय पे अगर मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग जो दिल्ली के हैं, मौलाना आजाद या एम्स के, स्टार्ट स्टडिंग इन सेकंड प्रॉफ। ज्यादातर लोग सेकंड प्रॉफ में पढ़ना शुरू कर देते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जबकि जो बाहर के शहर में बच्चे रहते कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि इस समय से भी पढ़ना है, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि बाद में एग्जाम भी होना है। जैसा कि मेरे साथ था स्कूल के समय में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ना है, लोग 8 से पढ़ रहे थे, मुझे पता नहीं था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि शेड्यूल चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, मैं अपनी डायरेक्शन में वापस आ गया और मैं समझ गया क्या कर रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग को पता ही नहीं होता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बाहर दिल्ली में, मुंबई में ज्यादातर लोग सेकंड प्रॉफ से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और वो अपना एक गोल बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि 5 मेजर जो अपने को रैंक लाइन, उनमें से 2 कौन से हैं? पैथ और फार्मा और पीएसएम। पीएसएम बताओ कितने लोगों को खराब सब्जेक्ट लगता है? खराब। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीसेंट ट्रेंड क्या मतलब है। रीसेंट ट्रेंड आपने देखा, हमने क्या लिखा? प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ पीजीएमई इन इंडिया। पिछले 2 साल में जो एग्जाम हुए हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीएसएम के ऊपर है कि नहीं? बात है ना आपकी। अगर आप अपने कॉलेज के सीनियर से पूछोगे, कॉलेज का सीनियर क्या बताएगा? हैरिसन पढ़ो। हैरिसन बताया, मैंने बोला ना, मैं नया ट्रेंड बताएंगे। अब भी मेडिसिन से भी ज्यादा पीएसएम की वेटेज बढ़ गई है पिछले 2 साल के एग्जाम्स के अंदर। प्लीज कीप इट इन माइंड। पीएसएम अच्छी लगे या बुरी लगे, रैंक लानी है तो पढ़नी तो पड़ेगी। तो जिससे फायदा मिलेगा उसको समझना जरूरी है। यूजुअली होता क्या है, हम लोग कई बार कॉलेज के अंदर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पीपल डोंट गिव अस करेक्ट डायरेक्शन। बोलते हैं पीएसएम, अरे यार कौन पढ़ेगा, छोड़ यार, क्या चीज, इसको पढ़ने की चीज है यार। एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू एट दैट टाइम। मतलब जब समझ आया कि उसकी एक किताब पीजी के अंदर रैंक बना सकती है, सिर्फ एक किताब को पढ़ना, वेरी यूजफुल। फार्मा, केडीटी हमने बात की, और लेकिन अगर आपके पास टाइम है, कैटसन और रॉबिन्स, और फिर मेडिसिन सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी कम टू दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, है ना, उस तरीके, क्योंकि मुझे लगता है आप में से अभी उसकी तरफ कम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में कितने लोगों ने गिनौन नहीं पढ़ी? गिनौन नहीं पढ़ी, क्या पढ़ा फिर आपने? सैम्पलिंग कौन सी? एक ही है। Again, you know, nothing against the book, but only problem with the book is that it is more towards prof, more oriented towards must. Genong is a must if you are looking at the PGME rank as a result. You know, reason for our seminar is not to scare you. Our seminar is to tell you what is the right way, and sometimes what happens is हमें कभी सही रास्ता पता ही नहीं चलता और हम समय तो लगा ही नहीं। Sir, I would like to interrupt. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मैं टेक 2-3 मिनट, फाइन, ठीक है? यू उसका जो एंड है, आई वांट टेल यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, विल डिस्कस दैट इन द एंड, ठीक है? जैसे रेड एफएम पे आता है ना, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है? देयर वाज ए, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जिनको पता हो वो अपना आंसर रख सकते हैं अपने पास, ठीक है? देयर वाज ए प्रेग्नेंट डियर, एक प्रेग्नेंट डियर था, हाँ डियर, हिरण, ठीक है? जंगल में, अब वो एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे वो अपने बेबी को बर्थ दे सके, ठीक है? He was looking for a place, जंगल था, बहुत तेज बारिश, बहुत जंगल के अंदर क्या था कि आग लगी हुई थी, ठीक है? तो वो भाग करके नदी के पास एक जगह एक शेल्टर मिला, तो वहाँ जाके उसने सोचा कि दिस इज द राइट प्लेस, हियर आई कैन गिव बर्थ टू माय बेबी। फिर क्या हुआ, उसने देखा, जैसे ही वो वहाँ गया, इतने में देखा जंगल में आग लगी है, समझो उस तरफ से रन करके वो आ रहा है, उधर से आग लगी हुई थी, दिस साइड वाज द रिवर, इस साइड उसने राइट में अपने देखा तो एक
शेर मुंह खोल के एकदम शिकार करने के लिए एकदम लायन यहाँ पे खड़ा था, और इस तरफ देखा तो एक शिकारी जो कि एम कर रहा था उस डियर को, हिरन को। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? और वो इतना लेबर पेन में है कि वो अभी रन नहीं कर सकता है। इस तरफ आग लगी हुई है, इधर शिकारी था, इधर शेर खड़ा है, तो कंडीशन इज सेम। आप लोग हैं प्रेग्नेंट डियर की जगह पे, ठीक है, और आप टू गिव द बर्थ टू बेबी इज लाइक यू हैव टू क्लियर योर पीजी एग्जाम। अब ये शिकारी कौन है, नेट बोर्ड है कि एम्स वाले हैं, कि वो लायन कौन है, यूपीएससी वाले हैं कि कौन है, नोबडी नोज। अब नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्या हो सकता है? वो हिरन क्या करेगा? शेर से बचे कि शिकारी से बचे कि पानी में चला जाए? हिरन को तो तैरना भी नहीं आता उतना। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग? वी विल डिस्कस इट इन द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है? हाँ, तो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में विल डिस्कस। गैनोंग इज अ मस्ट रीड। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो नॉट टू वरी। अब जो चीज, एक तो सबसे पहली बात है कि जो चीज हो चुकी है उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। यू कांट चेंज इट, ठीक है? अभी फिर भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है नीट एग्जाम वालों ने, जब नेट पे एग्जाम लेते हैं तो उसमें वंस यू ऑप्ट ए क्वेश्चन, जब तक आप फाइनल लॉक नहीं करते हो अपना चॉइस चेंज कर सकते हो। अदरवाइज पहले तो ऐसा था ना कि आपने अगर सर्कल कर दिया तो आपको उस क्वेश्चन पे कभी सोचना नहीं चाहिए। स्टिल लाइक इफ यू राइट पीजीआई, जैसे पीजीआई में एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन रहते हैं, अगर आपने एक्सेप्ट क्वेश्चन को एक्सेप्ट ना पढ़ करके 3 अगर भर दिए गलती से, तो ज्यादा टेंशन मत लो, उसके बचे हुए 2 भी भर दो, तो कम से कम 2 तो नलीफाई हो जाएगा, कुछ तो नलीफाई होगा। जो भर दिया उसके बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं उसको बेसिक से बताता हूँ, तो कम आइडिया हो। पीजी हमारे ना अलग अलग एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस के। आप किस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो पहले आप थोड़ा सा वो समझोगे तो आपको पता चलेगा। पहली चीज़ तो मैं सोचता हूँ आपकी स्टेज पे ना, जब मैं आपकी जगह था, क्योंकि मैं हमेशा से लेट चलने वाले लोगों में से था, जब मैं आपकी जगह था मुझे पता भी नहीं था कि आगे पढ़ना भी है। मैं जिस तरह के घर को मैं बिलोंग करता था, हमारे यहाँ बोलते थे डॉक्टर बन गया बहुत बड़ी बात होगी, और सब एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी डॉक्टर बन गया। आपके घर में भी मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में हमने पार्टी वगैरह की होगी, एक अच्छा सा डॉक्टर बन गया हमारे यहाँ पे लड़का, मैं तो दे विल बी सो हैप्पी। तो सडनली आई रियलाइज जैसे जैसे एमबीबीएस में आगे बढ़ता जा रहा था, लोग बता रहे थे यार जिंदगी बर्बाद है, और फीलिंग भी ऐसी आ रही थी, फीलिंग भी ऐसी आ रही थी, और लोग बताए जा रहे थे। और पता नहीं क्या था कि 3rd ईयर से ना मेरे साथ एक मेरा एक स्कूल फ्रेंड था जिसने इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी, और हम लोग सेम बस से कॉलेज जाते रहते थे, तो वो ना फर्स्ट ईयर से मुझे हर बार मिलता था साथ में, हर बार बोलता था क्या चल रहा है, और पता नहीं जब वो मुझसे पूछता था ना क्वेश्चन, उस दिन कोई एग्जाम होता था, मेरा एग्जाम में पढ़ रहा हूँ, या प्रॉफ होता था, या सेंटअप होता था, या फिर हमारे यहाँ टर्मिनल होता था, या वो ट्यूटोरियल हो रहा था, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता था। तो हमेशा मुझे किताब खोलनी पड़ती थी बस में पढ़ने के लिए। वो कहते क्या कर रहा है, पढ़ रहा हूँ, क्यों एग्जाम है। तो उसका ना ये मतलब जोक सा बन गया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 3rd ईयर में। मतलब आज भी अगर मुझे कहीं मिलता है कहता क्या कर रहा है, पढ़ता नहीं तो ऐसे चीज था देख के। अब उसका क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन कैसे आती है कि वो 4th ईयर में आने के बाद वो अपनी कैंपस प्लेसमेंट की बातें करना शुरू हो गया, मतलब जब उनका खत्म होने वाला तो जॉब की बात करना शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि जॉब तो दूर की बात है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि पास होना है कि आगे क्या करना है। सडनली आई रियलाइज कि मुझे सच में मैं लेट सोच रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जल्दी बता सकें कि सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ एमबीबीएस रह जाते हैं, आपको मालूम ये बात कि एमबीबीएस ऑल्दो एक समय पे बहुत रोजी साउंड करता था जब हम स्कूल के बाद उसके अंदर आए थे। मैं ये मानता हूँ हम में से कई सारे लोग, आप में से कई सारे लोग जीत के यहाँ पे आए थे, जीत के एमबीबीएस के अंदर आए थे। जीत के माने कि हमने बहुतों को हरा के हम यहाँ पहुंचे। एंड देन वी रियलाइज्ड कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है, मतलब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ये पहला राउंड था वीडियो गेम का, अभी दूसरा राउंड आना है। नहीं अब समझ नहीं, कई लोग कैसे होता है एमबीबीएस में आगे सोचते हैं कि गेम खत्म हो गई, मैं जीत गया, जबकि एक्चुअली में सिर्फ एमबीबीएस का स्टेटस काफी सोसाइटी के अंदर तो ग्रेजुएट ही है ना, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस है, बीए है, बीकॉम है, मतलब वी आर जस्ट अ ग्रेजुएट अगर हम सिर्फ एमबीबीएस होते हैं। ऑल्दो उसके बाद स्थिति इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है इफ यू गेट इनटू अ पीजी प्रोग्राम। अब इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, पीजी प्रोग्राम में आने के लिए इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग फेसबुक पे पढ़ते हैं और कई जगह पे बात बहुत डिबेटेड बात है, एमबीबीएस के स्टूडेंट ज्यादा है और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें कम है। क्या आप ये बात जानते हैं? जैसे स्कूल में बच्चे ज्यादा थे, एमबीबीएस की सीटें कम थी, उसी तरह से फिर पिरामिड एक बार और छोटा होगा, एमबीबीएस के लोग ज्यादा है, पीजी में कम है, फिर एमडी के लोग ज्यादा होंगे, डीएम की सीटें कम होंगी। पिरामिडल सिस्टम है हमारे देश में एजुकेशन का। ये वेस्टर्न कंट्री नहीं है, जैसे कि स्वीडन, आप जर्मनी जाते हैं वहाँ रेक्टेंगुलर सिस्टम बराबर है, मतलब आप जितने डॉक्टर उतनी पोस्ट ग्रेजुएट है उतने सुपर स्पेशलिस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लोग ही कम है, पॉपुलेशन है ही कम, पॉपुलेशन हमारे पास, हमारा सिस्टम पिरामिडल है, तो नंबर कम होगा। जब भी नंबर कम होगा तो एक जगह पे फिल्टर होना पड़ेगा, कुछ लोग आगे जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। इज दैट मेकिंग सेंस?
जब भी कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ नहीं जाते, तो क्या शुरू हो जाता है? कंपटीशन। इज दैट मेकिंग सेंस? कंपटीशन। इसका मतलब एग्जाम होगा। एग्जाम का तरीका एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड माने कि 4 में से 1 सही है। लेकिन इस समय पे 3-4 तरह के एग्जाम है जो आपको पता होना चाहिए। एक आपका एम्स का एंट्रेंस अलग एग्जाम होता है जो कि साल में 2 बार होता है, जो मेरे ख्याल से आप लोग कुछ लोग ना जानते हो। एक मई में, एक अभी नवंबर में। जो नवंबर का एम्स होता है उसमें जनवरी की इंटर्नशिप वाले एलिजिबल होते हैं। कई शहर के स्टूडेंट जिनकी इंटर्नशिप मार्च में खत्म होती है वो एम्स के नवंबर एग्जाम के लिए भी एलिजिबल होते हैं। 31 जनवरी। दूसरा एग्जाम है पीजीआई चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूट है, इसको एम्स के बराबर माना जाता है। उसके अंदर भी सीटें उतनी होती हैं जितनी एम्स के अंदर, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। और उसका एग्जाम अलग से दिया जाता है और उसके एग्जाम में एक क्वेश्चन में 1 से ज्यादा सही हो सकते हैं। समझ में? मोर देन 1 आंसर कैन बी करेक्ट। एक एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर और एक है स्टेट लेवल के ऊपर, जो कई स्टेट्स में अपना अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप में से कोई ऐसा है जो आंध्रा को बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से कोई है? आंध्रा में कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश के लिए ऑल इंडिया एग्जाम नहीं होता, उनका सिर्फ स्टेट एग्जाम होता है। ये एक फर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश की स्ट्रक्चर में। जेएनके। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इस साल में क्या चेंज है। एक और, अभी एग्जाम कागज में नहीं होते, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले के समय पे एग्जाम कागज में होते थे, आप टिक मारते थे। इस साल में एम्स का एग्जाम और सारे जितने भी नेशनल लेवल के एग्जाम है सब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। जैसे कि यूएसएमएलई का होता था, आप कंप्यूटर सेंटर्स में जाते हैं, वहां जाके आप एग्जाम देते हैं। और जबकि कई सारे जो स्टूडेंट जिनको कम एक्सपोजर होता है या जिनके शहर में इस बारे में बात कम होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कंप्यूटर पे एग्जाम करना कैसे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? और जबकि जो दिल्ली मुंबई का स्टूडेंट है उसे सेकेंड ईयर से ये बात पता है कि मुझे कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, उसी तरह से उसको वो पहले से ही कैप्चर कर लेता है। तो ये चीजें एक्सेप्ट पीजीआई एंड फ्यू स्टेट्स। अब पीजीआई आगे आके वो भी ऑनलाइन आना चाहिए। तो एम्स में भी पूरा ऑनलाइन हो गया। पहले दोनों ऑप्शन थे, ऑनलाइन एज वेल एज पेपर। इस साल से पिछले साल तक एम्स का पेपर कागज पे होता था, अब भी इस साल से और उसके पिछले वाले एग्जाम से दे आर पुटिंग इट टू ऑनलाइन। सर जब हम नए मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं तो उसकी वैल्यू भी पता नहीं होती। हम सोच रहे होते हैं कि जिंदगी सफल होगी, आराम से कट जाएगी, कोई बात नहीं, जो भी एक आधा बार फेल भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या था, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर एक सप्ली होना उसको डिबार करते थे आगे पीजीआई एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बैठने के अंदर पीजीआई के अंदर। अभी वो रूल खत्म कर दिया, इस साल से वो रूल खत्म कर जॉब कर दिया उन्होंने। बाकी और किसी पीजीआई एंट्रेंस में सप्ली का कोई रूल नहीं है। अगर आपका 2 भी है 3 भी है चलेगा। कोई 55% का रूल है जनरल। 55% जनरल कैटेगरी के लिए पीजी के लिए एलिजिबिलिटी है। ये सब जनरल पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि ना पता होना एक मतलब अपने आप को डिसएडवांटेज में डालने वाली बात है। मे बी हम कुछ आपकी तरफ से क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं। आयुष कोई पूछना चाहता है मुझसे? फील फ्री, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करनी चाहिए। We are just say we were once upon a time sitting on the other side, we are today sitting on this side. उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आपको लग रहा है मुझे कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, तो कौन सा मेरे लिए एकदम एप्रोप्रिएट टाइम है कि जिस टाइम मुझे करनी चाहिए, क्या मैं सेल्फ स्टडी करूं, क्या किस समय कैसे करूं, एनीथिंग व्हाटएवर। Hello. Yeah, this is simple question. Last year NET has happened and this year again dissolved. So this time AIMS will conduct or NBE will conduct? This is a very vital question that you are asking. मैं उसका जवाब आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल का जो ऑल इंडिया एग्जाम है ये अभी तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी को अलॉट नहीं किया कि वो कौन करेगा। It is between AIMS and NBE. More chances. UPSC is also there. UPSC is also there. UPSC is listening, but more chances toward NBE. NBE की तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को ज़्यादा चांसेस है कि ऑल इंडिया का एग्जाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन करेगा। So again is a small question. NBE का जो पैटर्न है पूछने का तरीका is a little different. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस साल में वो और भी ज़्यादा फर्क हो गया। पहले के समय पे NBE वन लाइनर होता था। इस साल का जो अगस्त का एग्जाम हुआ है वन लाइनर के साथ उसमें विजुअल क्वेश्चंस भी हैं जैसा कि यूएसएमएलई में आते थे। We have predicted it long back. मतलब जब NBE पहली बार आया था तभी से हम लोगों ने मतलब जब तक कुछ मॉडल पेपर कुछ भी नहीं आया था that time only we predicted कि कुछ ऐसे विजुअल्स और इस तरह के कुछ आने चाहिए। इस साल के एग्जाम में नेशनल बोर्ड के कम से कम 15 क्वेश्चन विजुअल्स के, जिसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये बात आपका सीनियर नहीं बता पाएगा क्योंकि इस बार का पैटर्न है। इस बार के एग्जाम के अंदर उन्होंने पैथोलॉजी के क्वेश्चन है, पैथोलॉजी की स्लाइड भी लगा रखी है जो चीज आप हल्के में सोच लेते हो ना एग्जाम में आ रहे क्या एमसीक्यू में थोड़ी क्वेश्चन है, क्लिनिकल एक्सरे की फोटो भी लगा रखी है कि ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है, बताओ क्या है। पैथोलॉजी की स्लाइड, क्रॉस स्पेसिमेन, इंस्ट्रूमेंट की भी एक फोटो है इस बार के एग्जाम के अंदर। मस्किटोस आल्सो इट इज दे हैव गिवन द फोटो ऑफ इट इज। इसके अलावा एक आइरोडोमी का मतलब एक आयरिस का फोटो दिया है उसमें होल है। अपना की फोटो भी दिखाई है।
तो दिस इज एब्सोल्युटली न्यू पैटर्न फॉर दिस ईयर्स एग्जाम, जो अब तक किसी भी आपकी कोई गाइड बुक में नहीं है। कई बार क्या होता है, लोगों को पता भी नहीं चलता, वो जो गाइड खरीद लेते हैं, लोगों के देख के वो पढ़ लेते हैं, वो अभी एग्जाम में नहीं आ रहा है। अभी का एग्जाम एकदम बदल गया है एमबी के एग्जाम के अंदर जो बना रही है, और इंडिया पेपर के अंदर उम्मीद है कि विजुअल्स, पैथोलॉजी की इमेजेस, एक्सरे की इमेजेस, और जो भी फोटो बन सकती है ग्राफ वो, और वन लाइनर्स और मिक्स्ड पेपर ऐसा बनेगा। इनफैक्ट ये चीज एम्स में भी अभी ऑनलाइन हो गया है ना, इसलिए ये चीज यहाँ पर भी हो सकता है मे बी विल ड्यू कोर्स एम्स के अंदर। क्योंकि प्रॉब्लम विद पेन पेपर थिंग इज लाइक यू नो व्हेन दे गिव विजुअल्स ना दे डोंट कम दैट क्लियर। पहले लॉन्ग बैक 95 97 के आसपास उन्होंने दिए हुए हैं एक दो फोटो पहले, पर वो पेन पेपर वाले में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता है, उतना विजुअल उतना क्लियर नहीं होता, इसलिए काफी कंप्लेंट्स थी, तो इसलिए लोगों ने वो इन्होंने विड्रॉ कर लिए। बट नाउ लाइक दे आर कमिंग विद ऑनलाइन एग्जाम्स एंड ऑल दीस थिंग्स, दे मे कम आल्सो, दे मे आल्सो कम विद द सेम थिंग। But for sure, जो भी है, we have to be ready with both the things. See, there are two things that should be very much clear if you want to get the rank in DNB or NEET or AIMS or anywhere. Your repeats, at least what Nikhil said, at least 10-year repeats and basics. These two things should be spinal. Spinal reflex होता है ना, जैसे कि basic और repeat. ये दोनों जब तक स्पाइनल नहीं होंगे ना आपके, मतलब कि कोई भी आपको रात को 2 बजे भी उठा रहा है और पूछ रहा है कि यार इसका आंसर क्या है, वो रिपीट अगर क्वेश्चन है तो कितना ही टफ क्यों ना हो, यू मस्ट नो द आंसर। और अगर वो बेसिक क्वेश्चन है देन आल्सो यू मस्ट नो द आंसर। अगर ये दो चीज आपकी क्लियर है, एक बेसिक और एक रिपीट, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट इट राइट। हाँ, ये बात अलग है कि हो सकता है किसी का 100 आए, किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1000, बट दीज टू थिंग्स आर मस्ट टू गेट ए रैंक इन पीजी एंट्रेंस एग्जाम। Whether exam is being conducted by NBE, UPSC, whichever board is taking. NBE, I know a little bit, you know, some people are feeling कि यार ये justice नहीं है, कुछ भी one liner पूछते हैं, या कोई scientist का फोटो दे दिया, this is ridiculous. But ठीक है, अब जो भी है, you have to face it. Situation आपके सामने है, आप उससे भाग के नहीं जा सकते हो। और अब तो MLE देना और ये सब भी comparatively, it's getting, you know, complicated. अब MLE, अब US जाना तो you need to deposit some amount to their government or something like that, so that you are not going to stay over there. So many complications are there. अगर आपने इंडिया में रहना है तो you have to face it. ये आपके सामने ही है कि अब कभी NBE भी ले सकता, हो सकता है कि at the last moment आपको नोटिस आए एग्जाम से 20 दिन पहले कि नहीं भाई एग्जाम ये नहीं ले रहा है, ये ले रहा है, तो कोई भी ले, we have to be ready with the everything मतलब। और इस चीज के लिए हम लोग उस चीज के लिए that you can leave on us। अभी जैसे DBT उन्होंने दिया, अभी वो प्रेडिक्टिंग इट, तो हमने तुरंत ही मतलब ऑन द वेरी शॉर्ट नोटिस अराउंड 10-20 डेज बैक ही एग्जाम खत्म हुआ है, और अभी नेक्स्ट एग्जाम का भी डेट्स हालांकि नहीं आए हैं, पर हमने कि भाई चलो ये चीज बच्चों का होना क्लियर होना चाहिए। सो वी आर हैविंग ए DBT सेशन आज कल और परसों 3 दिन इस देयर इन ITO एंड देयर राधा कृष्ण हॉल, ये कैंट एरिया में जो है, मतलब सो दैट यू लीव टू अस कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक चीज है कि आप हमको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, एंड बियॉन्ड दैट ठीक है, जो डाउट आपका कि सर ये एग्जाम कौन कंडक्ट कर रहा है, ये दैट इज मतलब नोबडी नोज, अभी कोई नहीं जानता उस चीज को, पर कोई भी कंडक्ट करे, वी हैव टू रेडी विद द स्टफ। दो चीज याद रखो, अपनी कॉपी पे कोई भी चीज जब पढ़ो ना, अपनी मेन जो आपकी नोटबुक है उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर लिख लो ये बात कि बेसिक्स एंड रिपीट शुड बी स्पाइनल। जिस दिन आपकी ये बात, ये लाइन ट्रू हो जाएगी ना, यू कैन इजीली मेक इट एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि आप लोग जो है ना ऐसे नहीं हो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, क्योंकि आपने कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, चाहे प्राइवेट एग्जाम क्लियर किया हो, चाहे गवर्नमेंट किया हो, चाहे नेशनल किया हो, चाहे स्टेट किया हो, आप यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। वो चीज नहीं है कि जैसे कि भीड़ जो चल रही है, इंजीनियर्स सर के टाइम पे ठीक है, अराउंड 10-12 इयर्स इंजीनियर्स वर गुड, बट नाउ इट इज इंजीनियरिंग इज लाइक यू नो व्हाट इज इंजीनियरिंग तो नहीं, हम तो खुश हैं, मतलब वो लोग हमसे ज्यादा हीरो बनते हैं। नहीं, अभी इंजीनियर्स यू नो many of your friend is engineer, तो yes no I want to ask something. yes please हमने MBBS एंट्रेंस के लिए जैसे 11th एंड 12th में बेसिक्स पढ़ाई की थी, और फिर एक साल ड्रॉप लेकर वी प्रिपेयर्ड फॉर द कंपटीशन एंड वी गॉट सिलेक्टेड। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम पीजी के लिए 4-5 साल पढ़ाई करके अंतिम में 1 साल पढ़ेंगे, या फिर 4 साल पढ़ाई करके बेसिक 5वें साल में पूरे 5 साल की पढ़ाई करेंगे, या फिर अभी से ही पढ़ाई करेंगे? आप अभी कौन से ईयर में? सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूजुअली कैसा होता है ना, जो गलती हमने पहले की ना वो बार बार करने को होशियारी नहीं कहते। जैसे ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी के अंदर ना अगर सबसे कीमती चीज़ हमें आप जानना चाहते हो, सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो समय है।
समय जो है ना, समय अगर गंवाना है तो फिर बाकी सब आप बाद में कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, नाम कमा लोगे, सब कुछ कमा सकता है आदमी, समय वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो लिमिटेड है हमारे पास। तो मैं कभी भी एनकरेज नहीं करूँगा कि आप एक साल ड्रॉप करके एग्जाम दो, एक साल क्यों खराब करें, ठीक बात है कि? तो इसी कारण से मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, आज की डेट में लोग कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो क्या करते हैं, सेकेंड प्रॉफ से पढ़ना शुरू करते हैं। सेकेंड प्रॉफ में अपने ये 4 सब्जेक्ट पक्के कर लिए, और जो पहले 3 जो गलतियां हमने पहले साल में की क्योंकि पता ही नहीं था पढ़ना है, आप समझ पा रहे हैं ना? क्या हमें पता था पहले साल में पढ़ना है? ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था, जबकि मैं अच्छा स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को, मुझे नहीं पता था कि ये दोबारा कोई पूछेगा, नहीं समझ रहे? मेरे को लगा किसी तरह ये मुसीबत एक बार प्रॉफ निपटाना है, दोबारा कौन पूछेगा? देन सडनली आई रियलाइज तो दोबारा आ रहा है फिजियोलॉजी, तो और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी मुझे। तो फर्स्ट प्रॉफ यूजुअली जो गलती हुई है उसको पक्का करें और ये सेकंड प्रॉफ को पढ़ें। थर्ड माइनर के अंदर, क्योंकि आपको पता है थर्ड माइनर में क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, जिसको मिनी प्रॉफ कहते हैं हम लोग, ऑप्था एंटी पीएसएम, और मेजर में क्या सब्जेक्ट होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीएच, ऑप्शन, है ना? हमारे समय पे क्या होता है, जब हमने एमबीबीएस की थी और एम्स में अभी भी एमबीबीएस के अंदर यूजुअली आप देखोगे ये एक कंबाइंड प्रॉफ बना रखा है। कंबाइंड प्रॉफ कैसा होगा कि फर्स्ट ये जो पीएसएम, ऑप्था एंटी और ये ऑप्था एंटी पीएसएम और मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन, हमारे सब एक ही प्रॉफ होता था। एमसीआई ने उसको आसान बनाने के लिए 2 भाग में डिवाइड कर दिया, माइनर और मेजर, जैसा कि आपके साथ। अब अगर आप देखोगे कौन सा प्रॉफ ज्यादा बिजी लगता है आपको, मेजर की माइनर? मेजर ज्यादा बिजी है। इसका फायदा उठा के दिल्ली और मुंबई में खास तौर पे बच्चे, आज की डेट में बैंगलोर में, पूना में, हर जगह पे जितने भी बड़े शहर हैं, वो थर्ड माइनर के समय को इस्तेमाल करके उसमें मेडिसिन की किताब, जिसका मैं नाम मैं आपको बताने से कतरा रहा था, मैं अभी बताना चाहता हूँ, अगर आपने नहीं सुनी अभी तक, हैरिसन सुना है ना? सीनियर बोलते रहते हैं हैरिसन, उसको थर्ड माइनर में हैरिसन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो मैं सिखाऊंगा बाद में कि हैरिसन को कैसे पढ़ना है, इस बारे में बात करूंगा मैं आपसे। और सर्जरी को कर लेते हैं थर्ड माइनर में। जब वो मेजर में आते हैं तब तक उनकी एक रीडिंग क्लिनिकल की हो चुकी होती है, ऑप्था एंटी पीएसएम तो वैसे ही पढ़ना ही था प्रॉफ के लिए, वो पढ़ ही लेते हैं। फिर जब वो मेजर में आते हैं उसको रिवाइज करते हैं, और जब वो इंटर्नशिप में आते हैं सारे सब्जेक्ट्स को सिर्फ एमसीक्यू ओरिएंटेशन से रिवाइज करते हैं और उसी साल में पीजी में रहेंगे। ठीक, थोड़ा मोटा मैंने एक आइडिया बना दिया ना कैसे पढ़ना है। सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, अगर इसको अभी इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिंदगी का 1 साल बच सकता है। जिंदगी की 1 साल की कीमत कोई बता नहीं सकता कितनी है, कोई बता नहीं सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा है। मतलब फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड। 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में, आप सोचिए। 1 मिनट में समझ रहे हो, 1 साल में 40 बचाना बहुत है। मतलब अभी से हारा हुआ थॉट मत सोच के मैं बाद में पढ़ूंगा बैठ के, ऐसा नहीं हो। दूसरा, मैं आपको थोड़ा सा और बात ऐड करना चाहता हूँ। पीएमटी अलग बॉल गेम था। पीएमटी के अंदर क्या होता है आपने समझना है। पीएमटी के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे, बहुत सारे लोग पीएमटी लिखते हैं, लेकिन क्या वो सारे सीरियस होते हैं? क्या वो सारे सीरियस होते हैं? काफी हद तक। कुछ लोग तो पता ही नहीं होता है क्या होता है इसके आगे। कुछ ही ग्रुप होता है जो सीरियस होता है, उसको हमें हरा के आगे आना होता है। अब आप पीजी एंट्रेंस की बात सोचो। पीजी एंट्रेंस में क्या सोचते हो आप? सारे तो डॉक्टर आएंगे, सारे तो जीत के आ रहे हैं, सभी सीरियस है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, पीएमटी में रैंक आगे है पीछे है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीट में सबको आखिर में एमबीबीएस करनी है। यहाँ पे जगह का फर्क पड़ने के अलावा आपका सब्जेक्ट भी फर्क हो जाएगा। क्लिनिकल सीटें हमेशा ऊपर जाएंगी, नॉन क्लिनिकल नीचे जाएंगी, फॉर ऑब्वियस रीजन। आप जानते हैं आप डॉक्टर क्यों बने थे? जब आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनने के बारे में, तो आपने सोचा था कि मैं मरीजों को देख रहा हूँ, स्टेथोस्कोप लगा के दवाई दे रहा हूँ, सब क्लिनिकल सर्जरी कर रहा हूँ। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उनकी रैंक ऊपर जाता है। Any other query that you have? Maybe we can answer. Maybe if you have any queries, just आप समझ पा रहे हैं ना बात, क्योंकि कंपटीशन क्यों टफ है।